Hello and Assalamu alaikum everyone. A warm welcome to Opening Mind Mental Health Awareness Series by Teen Therapy Wellness. We are going to start with the episode 11, and we have a wonderful speaker today, a wonderful topic, and we will be shedding light on very informative and insightful things today. So thank you everyone for joining. Before we start, I would like to give you a brief introduction about myself. My name is Afra Arshad, and I'm the visionary founder and CEO of Teen Therapy Wellness. And I established this in 2019. Teen Therapy Wellness is basically a mental health platform that focuses on providing safe space to individuals, mental health services, different workshops, seminars, training, supervision, all related to mental health. The goal of Teen Therapy Wellness is to spread awareness about mental health issues and to make sure that we destigmatize the stigmas that are attached to it. All right. Now, I would also like to thank our sponsors, Wellbeing Hub, We Protect You, and Amna Insari. We are so thankful and grateful to each of the sponsors because they have been helping us in spreading about our workshop, and they are posting on their social media so that they can reach out to more audience. So thank you so much to each of our sponsors. Now, moving on to our guest honor of today's speech, that is Mavish Numan. We are so thankful that you are here. She's a certified dietitian, psychotherapist, and hypnotherapist, and she's passionate about promoting mental health. Thank you so much for being here with us. The topic of today's presentation is gut brain harmony, how nutrition, mind, and hypnosis shape mental wellness. You're going to learn so much about the role of food that you eat and what's the connection between the gut and your mental health. All right, moving forward to Miss Mavish. I hope that you are here with us. Mama? Are you there? Let me. All right, she is joining in. Let's just give her some time. All right, just give us 2 minutes. She'll be here anytime. Thank you so much, Laiba. She said that she's super proud and thankful for this amazing series. I am thankful to each one of the participants who have been with me throughout this journey. And I actually feel like that you all are part of this journey and we all are into this together. And honestly, I was not expecting कि माशाल्लाह इतना अच्छा response मिलेगा and you all will be willing to learn. I'm so happy to see. And the best part is that we have a variety of people. It's just not limited to psychology students or professionals. We have uh, people with different background and they are interested to know about mental health. So I think that's a huge success for all of us that now we are reaching to other professionals as well.
Neha Gul said that you are super amazing and it always feels at home. More power to you. Thank you so much, guys. It means so much to me how supportive each one of you are. Honestly, I'm so humbled and grateful to each one of you. All right, so we do have Miss Mavish with us. Thank you so much, Neha and Tuba, for your warm words. I'm also always waiting for these webinars and to meet you guys again and to interact with you people. Tuba said that she's providing us a comfortable room to communicate things easily. Aksa said, amazing series, man. Jazakallah. Jazakallah so much. Thank you. Thank you, each one of you. Assalamu alaikum, Miss Mahwish. Can you hear us? Can you hear me? Hello? 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 Assalamu alaikum. Yes, yes, we can hear you. How are you? Walaikum assalam. I'm fine, thank you. Thank you so much for joining. Miss Mahwish, आप थोड़ा सा late join किया आपने. So I've already done your introduction. Now I want कि आप भी थोड़ा सा अपने आप को introduce कर दे if you want to, and then you can share your screen and we can start. Okay. Sir, is it possible for you to share the screen? All right, With, all right. Let me do that for you. Just give me a minute. uh, okay. Till then, my name is Mehvish and I am a hypnotherapist. Most of the time, I am doing my work with people who are having mental health issues. But right now, I am speaking to the group of people who are more educated and more smart than me. So I am a little nervous too talking to you people, but inshallah this will be going to be a good session. So हमारा टॉपिक आज का है गट ब्रेन कनेक्शंस. ठीक है ना. हमारा जो ब्रेन है और वो गट है वो दोनों किस तरह से कनेक्टेड है. तो स्टार्ट हम इस तरह से लेते हैं कि आप में से कुछ लोग होंगे जो ये समझते हैं कि हमारा बॉडी का जो पार्ट है ब्रेन, हम उसके बारे में ही सोचते हैं कि हमारा ब्रेन ही हमारी मेंटल हेल्थ को और हमारी फंक्शंस को और हमारे इमोशंस को जो है वो एड्रेस करता है और हमारी हीलिंग में वो हेल्प करता है. बट हमारा जो सेकंड ब्रेन है वो हमारा गट है. सो हम आज अपने गट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. ठीक है ना. आई होप कि आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे, बट कुछ लोग होंगे जो कि इन चीज़ों को इतना अच्छे तरीके से नहीं समझते होंगे या इतना डीपली नहीं समझते होंगे. तो उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली आज का हमारा वर्कशॉप है. और आज हम लोग जो स्टडी करेंगे उसमें हम अपने इमोशंस थॉट्स के बारे में भी समझेंगे कि वो किस तरह से हमारे गट के साथ और कनेक्टेड है और हम किस तरह से हिप्नोथेरेपी के थ्रू या हिप्नोसिस के थ्रू जो है वो अपने गट की हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को, दोनों को एक साथ लेके चल सकते हैं. ठीक है ना. मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग जो है वो अपने क्वेश्चंस वगैरह जो है वो इनबॉक्स में, आई थिंक चैट बॉक्स में जो है वो हमारे लिए ऐड ऑन करते रहें ताकि जो है वो हम साइड बाय साइड उन पे भी बात करते रहें. सो हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है ये इंट्रोडक्शन के बारे में ही थी कि हमने जो इस टॉपिक के अंदर जो है वो डिस्कस क्या करना है. ठीक है ना. तो ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि हम किस तरह से जो है वो किस तरह की माइंड प्रैक्टिसेस हो सकती हैं या क्या हम इंटरनल इकोसिस्टम को किस तरह से हैंडल करेंगे और किस तरह से चीज़ों को लेके आगे चलेंगे. और हम रेजिलिएंट माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे ताकि जो है वो हम अपने आप के इम्प्रूवमेंट पे बात कर सकें. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं. एक छोटा सा हम जो है वो हिप्नोसिस का एक आपको मजा चखाते हैं. ठीक है. थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं. अगर आप में से कुछ लोग हैं जो अपने स्क्रीन ऑन कर सकते हैं तो मुझे आप लोगों के एक्सप्रेशन देख के बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि
जब आप हिप्नोसिस में होते हो तो आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो हमारी एनर्जी होते हैं। ठीक है, तो अगर जो लोग हैं वो अपने कंफर्टेबल स्पेस में हैं और वो अपना स्क्रीन ऑन करना चाहते हैं तो प्लीज वो ऑन कर दीजिए, और अगर आप नहीं करना चाहते तो इट्स योर चॉइस ऑफ कोर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा सेशन होगा हमारा, जो कि 5 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा, बट हम जो है वो अपने गट को पहले समझते हैं कि ब्रेन के साथ कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम डीप ब्रीदिंग के साथ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग बेली तक अपना ब्रीद इन करें और उसके साथ पॉज एंड देन एक्सेल। ब्रीद इन, एक्सेल, ब्रीद इन, एक्सेल। जैसे ही आप लोग कंफर्टेबल हो जाएं इस ब्रीदिंग के साथ, अपनी आईज अगर क्लोज कर लेंगे और आपका राइट हैंड आप अपने गट के ऊपर रख लेंगे और अपनी बेली मूवमेंट्स को महसूस करना स्टार्ट करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर एक तरह से हिप्नोसिस स्टार्ट हो जाए। अब आपने ये सोचना है कि अगर आपका गट आज बात कर सकता तो वो क्या बोलता, आपको आपको क्या एक्सप्रेस करता। जो आपको गट के अंदर सेंसेशन फील हो रही है वो क्या है? हैवी, टाइट, वार्म, सूथिंग, एंशियस? डीप ब्रीदिंग। अच्छा, आप लोगों ने अभी इसको एक्सप्रेस नहीं करना है, आपने अभी इसको सिर्फ फील करना है। हम इस सेशन के बाद आपके एक्सप्रेशन लेंगे ताकि आपकी पूरी एनर्जी उस सेंसेशन को फील करने में लग जाए। और डीप ब्रीदिंग के साथ आपने अपनी सेंसेशंस को फील करना है। अब आपने इमेजिन करना है कि आपका जो गट है वो बेसिकली एक ग्लोइंग पाथ है टू योर ब्रेन। उसमें लाइट्स ऑन है, ग्रीन कलर की लाइट इमेजिन कर सकें तो वेरी गुड, अदरवाइज सनलाइट इमेजिन कर लें। और उसकी जो लाइट है उसकी ब्राइटनेस आपके ब्रेन तक जा रही है। अब आपने अपने गट को कहना है, आई ट्रस्ट माई गट टू गाइड मी टूवर्ड्स what nourish me physically, emotionally and spiritually। ये अफर्मेशन मैं रिपीट कर रही हूँ। I trust my gut to guide me towards what nourishes me physically, emotionally and spiritually। मैं अपने गट पे भरोसा करती हूँ, करता हूँ कि वो मुझे गाइड करेगा ताकि मैं अपने आप को नरिश कर सकूं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली। अब आप नोटिस कर रहे होंगे आपका गट आपको एक सेफ्टी, काम और कनेक्टिव फीलिंग दे रहा है। अब आपका गट आपका एक एंकर बन चुका है टूवर्ड विजडम, जो कि आपको सेफ्टी, ट्रुथ और इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा हर ब्रेथ के साथ। सो ब्रीदिंग एंड डीप ब्रीदिंग is really important। आपका इनर कंपस फुली सेफ और रिलैक्स है। अब जिस पेस से आप वापस आना चाहें, स्लोली नॉर्मल ब्रीदिंग की तरफ वापस आ जाइए।
अपनी आईज ओपन कर लीजिए और कमेंट में जरूर शेयर कीजिए कि इसकी क्या फीलिंग्स थी। इट्स ओके टू कम विथ योर फेस। ओके हीरा, थैंक यू। आप रिलैक्स हो गई। अच्छा हीरा, जब आप रिलैक्स हुई हैं उसका बेस्ट पार्ट ये है कि वो आप हमेशा इस एंकर को यूज करके जब भी चाहें इसको रीस्टार्ट करके रिलैक्स काम दोबार काम हो गई है। और अक्सा भी रिलैक्सिंग, अली इज रिलैक्स्ड, थोड़ी एंजाइटी कम हुई, उमर सही है। तो जिस तरह से हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ज्यादातर लोग रिलैक्स हुए हैं। आई थिंक किसी का एक और मसला था जो शायद एंशियस हो गए थे, राइट? मुझे वो कमेंट नहीं दिख रहा है। ओके, गूस बम्स। ओके, जिनको गूस बम्स आए हैं जरा वो बताएं अपने एक्सप्रेशंस। अगर आप माइक ऑन करके शेयर करना चाहें कि कैसी फीलिंग्स थी। टू नॉइस हियर। अच्छा, आई थिंक आपके बैकग्राउंड की बात है कि टू नॉइस, राइट? इसलिए आप जो है वो कॉल नहीं करना है। ओ, ओके, आई गेट योर पॉइंट। ठीक है। हम्म। और कोई जो अपने एक्सप्रेशंस अपना माइक ऑन करके शेयर करना चाहे तो प्लीज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको लेके आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, फिर हम इसको लेके आगे चलते हैं। बट ये एक्टिविटी जो हमने अभी की, इट वाज जस्ट 2 और 3 और 4 मिनट्स, ठीक है ना? हम इसको कभी भी अपने लाइफ में जहाँ पे भी हमें लगे कि हम स्ट्रेस हैं, हम इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। और ये एक्टिविटी आपके लिए ऐसी होगी जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई ऐसी सिचुएशन में हैं, जैसे कि अभी सेशन से पहले मैंने इस तरह की एक एक्टिविटी की, अपना एंकर यूज किया ताकि मैं रिलैक्स्ड और काम हो सकूं, ठीक है ना? इसी तरह से आप लोग भी जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है, लाइक आपको पता है थोड़ी देर बाद आपने एक किस्म की जंग, मतलब जंग तो नहीं कह सकते बट ऐसे एनवायरनमेंट में जाना है जहाँ पे आपने अपने फुल जो है वो एफर्ट्स भी दिखाने हैं और अपनी कंट्रोल भी नहीं छोड़ना है। तो वहां पे आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं और ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम थ्योरी की तरफ जाते हैं। थोड़ी सी बोरिंग होगी बट ये कि जहाँ बोरिंग हो रही हो प्लीज टू शेयर मी, ताकि मैं उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग ही लेके चलूँ। ओके, हमारा जो गट है और हमारा ब्रेन है वो एक टू वे कम्युनिकेशन है। इसको ये समझ लीजिए कि जैसे टू वे हाईवे होता है ना, ये उस तरह का कम्युनिकेशन है। लाइक अगर आपके गट की हेल्थ खराब है तो आपके ब्रेन की हेल्थ खराब होगी, और जब आपके ब्रेन की हेल्थ खराब होगी तो आपके गट की ब्रेन हेल्थ खराब होगी। सो ये टू वे कम्युनिकेशन है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देखी जाती है वो होती है वेगस नर्व। अगर हम अपनी वेगस नर्व को कंट्रोल कर ले, जो हमने अभी इस एक्टिविटी के थ्रू बहुत सारे लोगों ने रिलैक्स फील किया, ठीक है ना? तो वो बेसिकली यही था कि आपकी वेगस नर्व को जो है वो हमने कंट्रोल कर लिया, आपके ही कंट्रोल में आ गई। और आप जो है वो अपने स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्स की जगह आप जो है वो रिएक्ट नहीं करेंगे, आप रिस्पॉन्ड करेंगे। और वो बहुत ही अच्छी चीज होगी क्योंकि आप उसके ऊपर सोच के और फिर जो है वो कर रहे होंगे, ना कि आपने जो है वो रिएक्ट करना शुरू कर देना। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से इमोशनल हाईवे होता है, जो जिसमें हमारा गट जो है वो हमारे ब्रेन को मैसेजेस दे रहा होता है और ब्रेन जो है वो गट को मैसेजेस दे रहा होता है। ठीक है, सेकेंड चीज जो हमारे टू वे कनेक्शन में आती है
वो होती है केमिकल मैसेंजर्स। हमारे गट और ब्रेन के दरमियान जो छोटे छोटे मैसेंजर्स होते हैं, वो हमारे बहुत सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, जिसमें सेरोटोनिन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो हमें फिर हमारी स्लीप को, हमारे एपेटाइट को और हमारे मूड को, इन तीनों चीजों को जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं अगर हमारा टू वे कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। तो हम जो है वो अपने गट की हेल्थ पे इसलिए काम करना चाहते हैं बिकॉज हम अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को अच्छा बनाना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा भाई ये तो प्रॉब्लम डिस्कस कर रही है, पता नहीं आपने जो है वो जी एरम हेडेक ऑल्सो, जी वो मूड के अंदर काउंट होता है। हेडेक, माइग्रेन, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे ब्रेन की हेल्थ और हमारे फिजिकल हेल्थ दोनों चीजें जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा, एक बहुत मजे की बात जो कि मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि अक्सर लोगों को लगता है कि हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई है। जब से कोविड आया, लोग इम्यूनिटी के हवाले से बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, तो वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डिफरेंट चीजें कर रहे होते हैं। बट कोई भी जो है वो बहुत कम लोगों को इस बात का पता है कि आपकी इम्यूनिटी स्टार्ट होती है आपके गट से। ठीक है, अगर आपको आईबीएस का इशू है, एसिड रिफ्लक्स है, या आपका सीबो का इशू है, तो आपको जो है वो, आप कितना भी अपना इम्यूनिटी पे काम कर लो, आपको कोई फायदा नहीं होगा। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने मतलब अपनी हेल्थ के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बहुत सारे डिफरेंट सप्लीमेंट्स लेते हैं। ठीक है ना, बट वो आपकी इम्यूनिटी के लिए काम ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपका गट उसको उस तरह से एब्सॉर्ब ही नहीं करता। उसको उसको या तो आपके गट के बैक्टीरिया ही खा लेते हैं, वो कंज्यूम कर लेते हैं, और वो उनकी एनर्जी का सोर्स बन जाता है जो बैड बैक्टीरियाज हैं, क्योंकि गट में बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं। ठीक है ना, तो या तो वो कंज्यूम कर लेते हैं, या हमारी लाइनेज इतनी डिस्टर्ब होती है कि वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, या थर्ड थिंग ये होती है कि वो हमारे कॉलिंग के थ्रू वो वेस्ट हो जाता है। हमें लगता है भाई हम तो इतना सारा आयरन खा रहे हैं, हम तो इतना सारा जो है वो कैल्शियम ले रहे हैं, फिर कैसे कैल्शियम लो आ गया, तो वो वेस्ट हो रहा होता। ठीक है, अच्छा इरम शहजादी, आप ओपन कर लीजिए माइक, आपका कोई क्वेश्चन है राइट? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो एक पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किस तरह का वर्क कर रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है या स्लो है। तो उसके अकॉर्डिंग जो मेडिसिन होती है वो उस पे एक्ट करती हैं। क्योंकि जब आप जैसे अगर हम इसके एग्जांपल एक एंटीनेटल वुमेन की लें या प्री नेटल की, जो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है, वो अपना एंटीनेटल फॉलो अप कर रही है, तो उसमें जो है वो ये चीजें एडवाइस की जाती हैं, लाइक मल्टीविटामिन्स हो गए, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया। तो नो डाउट कि जो आपकी डाइट होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, वो बेनिफिशियल होती है, उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। लेकिन मेडिसिन ऑल्सो गिव अ गुड रिस्पॉन्स टू योर बॉडी। और लेकिन मेडिसिन की भी अगर बात करें, हर चीज़ की एक कॉम्प्लिकेशन होती है या बेनिफिट्स होते हैं, तो ये दोनों के होते हैं। सम टाइम आपकी जो बॉडी है वो मेडिसिन को रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती, कैल्शियम नहीं दे रही होती, आयरन नहीं दे रही होती, आपकी कोई ना कोई आपका ऑर्गन एक डिसफंक्शनिंग कर रहा होता है जिसकी वजह से वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती। लेकिन दोनों चीजें कंपल्सरी होती हैं इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए आयरन मेडिकेशन प्लस डाइट, नो डाउट के अगर हम कंपैरिजन करें तो डाइट बहुत ज्यादा बड़ा रोल है, वो आपको ज्यादा देगी, लेकिन दोनों बोथ आर बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी। थैंक यू सो मच। जी रम, मैं आपकी कुछ बातों के साथ एग्री करती हूँ, और कुछ बातों के साथ ये कहूंगी कि आपको एक चीज को समझना जरूरी है कि मेडिकेशन और सप्लीमेंट्स ये दो एक डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है ना, हम लोगों को क्योंकि सप्लीमेंट्स भी मेडिकेशन की फॉर्म में ही मिलती है, तो अक्सर लोग मेडिकेशन और सप्लीमेंट्स को एक ही क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, सेकेंडली, हम किस क्वालिटी का सप्लीमेंट ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक हमारे पाकिस्तान में नोच है। ठीक है ना, लोग कैल्शियम बोल के कैल्शियम नहीं बेच रहे, या वो कैल्शियम वो वाला बेच रहे हैं जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर।
बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें हैं। हाँ, जहाँ तक इम्यूनिटी और डाइट और सप्लीमेंट्स की बात है, ऑफ कोर्स सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए और डाइट पे भी कंट्रोल करना चाहिए। बट अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो टू वे कनेक्ट होता है और हमारी इम्यूनिटी इफेक्ट होती है। सेकेंडली, हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर एक बहुत एक आला क्वालिटी कह सकते हैं कि वो हमें अक्सर जो है वो ऑटो इम्यूनिटी की तरफ लेके जाता है। ऑटो इम्यूनिटी हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को तो इस बारे में मालूम ही नहीं है कि ऑटो इम्यूनिटी होती क्या है। बेसिकली होता ये है कि हमारे जो हेल्दी सेल है वहां पर हमारी इम्यूनिटी अटैक करने लग जाती है। लाइक अक्सर लोगों का आपने सुना होगा कि उनके नी में पेन है, उनके शोल्डर में पेन है। अच्छा, जब हम उसके अंदर डिग डीप करते हैं तो पता चलता है कि वो ऑटो इम्यून है, उनकी बॉडी खुद ही जो है वो अपने सेल्स को मारती है। ठीक है ना। बेसिकली इसमें थायराइड आ जाता है, थराइटिस आ जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारी बॉडी ऑटो इम्यूनिटी की तरफ चली जाती है। सो ऑटो इम्यूनिटी से बचने के लिए सबसे अच्छी, जी ऑटोफेगी भी कह सकते हैं, ऑटो इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। बेसिकली होता यह है कि ऑटो इम्यूनिटी से सबसे अच्छा बचने का तरीका यही है कि आप देखो कि आपके ट्रिगर फूड्स कौन से हैं। आवाज में कोई प्रॉब्लम है क्या? आई थिंक सिर्फ एक जगह पे है, राइट? ओके। तो ऑटो इम्यूनिटी से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ट्रिगर फूड्स को हम देखते हैं और उन्हें हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। सो ट्रिगर फूड्स में जो है वो चंद एक फूड्स हैं जिनको हम ट्राई कर लें। अगर एक वीक हम जो है वो उनको ना लें, लाइक एक वीक हम डेयरी ना लें, एक वीक हम ग्लूटेन ना लें, ठीक है, एक वीक जो है वो हम पीनट्स ना लें, तो हमें जो है वो बेसिकली पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी किस चीज से एलर्जिक है। ठीक है ना। एक वीक के बाद आप लेना स्टार्ट करो, आपकी बॉडी में वही सिम्टम्स आ जाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अच्छा ऑटो इम्यूनिटी में एक एक्जिमा जो है वो नॉर्मल हमारे यहाँ पे हो रहा होता है, लोग जो है वो उसको समझ भी नहीं रहे होते। ठीक है। मैम, जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी ये जो ऑटो इम्यून सिस्टम होता है, इसका यही मतलब होता है ना कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। जी जी जी। थैंक यू सो मच। आपका जो आपकी बॉडी के अंदर जो है ना व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं बेसिकली। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है उनका काम होता है डिफेंस करना आपकी बॉडी का। ठीक है ना। तो आप ये समझ लो कि वो आपके ही अगेंस्ट, आपकी बोन्स के अगेंस्ट, आपके थायराइड फंक्शन के अगेंस्ट जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं और चीजें डैमेज होना शुरू हो जाती है। ठीक है। आगे इसमें टू वे कनेक्शन में जो फोर्थ थिंग जो है वो ये है कि हमारा जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा सेकेंड ब्रेन होता है। ठीक है। हम उसके अंदर छोटे छोटे नर्व सेल्स होते हैं जो कि हमारी बहुत सारी हेल्प कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, जी जी, हनी काशिफ, यस आप सही कह रही हैं कि हमारी बॉडी अपने आप को खाना शुरू कर देती है। तो जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा सेकेंड ब्रेन होता है और वो जो है वो नेगेटिव सिग्नल्स भेजना शुरू कर देता है। लाइक आप में से कितने लोगों को गुलाब जामुन पसंद है या मीठा बहुत पसंद है? सामिया, हानिया, अक्सा, अंसा, एक्सट्रीम स्वीट और सैरिश। ओके। सवेरा आप हैंड रेस कर रहे हो तो आप अपनी बात कह दो, बाकी सब गुलाब जामुन मेरे भी फेवरेट है। वेल, जबकि मैं डाइटिशियन हूँ तो क्या हुआ, फेवरेट तो हो सकता है, ठीक है ना, नॉर्मली पसंद है। अच्छा, जिन्होंने हैंड रेस किया था वो अपनी बात कह लें, फिर मैं इसको डिस्कस करती हूँ उनके गुलाब मैम, जामुन। आई थिंक आजकल जो फीमेल्स डाइट कॉन्शियस है, बच्चे मोस्टली होती भी हैं, तो वो मेरे ख्याल से अपनी जस्ट जब उनका सेरोटोनिन इम्बैलेंस होता है, ब्रेन केमिकल, तो उसको बैलेंस में लाने के लिए मीठा यूज करती हैं, अदरवाइज नहीं खाती। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता। ओके, फेवरेट है बट कांट ईट मोर देन वन। अच्छा, किसी और ने भी हैंड रेस किया था इरम के अलावा, आई डोंट नो द नेम, मुझसे मिस हो गया। अगर आप नाम माइक ऑन करना चाहते हो तो पढ़ लीजिए। आई कैन ईट मोर देन फोर, आई कैन ईट मोर देन 10। अच्छा, आई कैन ईट मोर देन 10। चले जी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मीठे की। सो
जी अंसा, हम लोग एक दिन जो है ना वो सिर्फ जो है वो गुलाब जामुन खा सकते हैं, फिर अगले दिन वर्कआउट करना है आपने। ठीक है, तो मतलब डाइट में सिर्फ गुलाब जामुन। ठीक है। अच्छा, जहां तक हम बात कर रहे थे कि नेगेटिव सिग्नल्स की, तो ऐसा होता है कि आप पहले सोचते हो कि हाँ आपने एक जो है वो गुलाब जामुन खाना है, अ, ठीक है ना। बट जैसे ही आप वो एक गुलाब जामुन खाते हो या आपकी पसंद का मीठा खाते हो, तो फिर आप बोलते हो मोर 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 मोर, ये आ गया नेगेटिव सिग्नल्स। ठीक है ना। जो भी है आपके कार्ड्स आप जितने भी लोगे ना, तो वो आप समझ लो कि कार्ब्स जो है वो आपका, वो बोलेगा अंदर जाके हाँ भाई और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अच्छा, रिजल्ट क्या होगा? आप टायर्ड हो जाओगे, एंशियस हो जाओगे और सैड हो जाओगे। ठीक है। तो जब आपने लेजी होना है, एंशियस होना है और सैड होना है, आप खा सकते हो गुलाब जामुन, या पूरा बॉक्स खा सकते हो मिठाई का, जो आपकी पसंद की है। बट ये हमारे एक नेगेटिव ब्रेन सिग्नल्स होते हैं, और कुछ लोग कोपिंग मैकेनिज्म के तौर पे मीठा खाते हैं। लाइक अगर आप अपसेट हो, आप बोलो कि आज मेरा मूड खराब है, चलो थोड़ा मीठा खा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, एक हद तक मीठा खाना इज गुड। ठीक है ना। आप शुगर नहीं खाओ, आप गुड़ खा लो या शहद खा लो, वो भी मीठा ही होता है और आपको मीठे की सेटिस्फेक्शन देगा। बट हम लोगों को इतना रिफाइंड शुगर की तरफ ले जाया गया है कि, और इतनी इजीली अवेलेबल है और उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। आप देख लो, आप रियल हनी लेने जाओ आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा, बट आप शुगर लेने जाओ तो आपको बंडल्स के बंडल्स मिल जाएंगे उसी अमाउंट के अंदर। सो ये एक सोची समझी साजिश कह सकते हैं इसे, कि हमें स्पेसिफिकली डाला गया है शुगर के ऊपर, ताकि हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा मेडिकेशंस के ऊपर जा सके। ठीक है। तो ये पूरा एक एक स्कैम है जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये हमारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी, राइट। तो वहाँ के लिए कुछ फिर रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। आई थिंक हमें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन का रोल। ठीक है। न्यूट्रिशन का रोल देखो, कुछ कुछ होती है टारगेटेड डाइट। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो एक्सट्रीम वेट लॉस की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो एक्सट्रीम वेट गेन की तरफ जाना चाहते हैं। हमारे साथ भी कुछ ना कुछ लोग होंगे जो वेट लॉस या वेट गेन की तरफ जाना चाहते होंगे। प्लीज आप लोग अपना कमेंट बॉक्स यूज करके मुझे अपने बारे में बता सकते हैं। ओके, वेट गेन, एक्सट्रीम लॉस तो नहीं करना, वेट गेन लॉस, वेट गेन मैम, वेट गेन। अच्छा, यहाँ पे तो बैलेंस चल रहा है। आधे लोग जो है वो एक एक मैसेज आ रहा है वेट गेन का, एक वेट लॉस का आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, वेट रिडक्शन या वेट लॉस कह सकते हैं, और वेट गेन कह सकते हैं। ठीक है ना। ये दो चीजें हैं जो कि हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। ठीक है ना। वेट गेन में सबसे अच्छी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आप लोग प्रोटीन इनटेक कीजिए एंड वर्कआउट। ठीक है। तो आप लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके आप अपने मसल्स डेवलप कीजिए प्रोटीन डाइट के साथ। फिर आप देखिए कि आपको वेट गेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। बाकी जहां तक वेट लॉस की बात है, बहुत सारी चीजें हैं जो देखी जाती हैं, जिसमें स्ट्रेस। अब वो मजा आएगा ये बात सुन के कि मेरी जो है वो इस फील्ड के अंदर, मेंटल हेल्थ की फील्ड के अंदर आने की एक रीजन ये है कि मैं पहले एक डाइटिशियन थी, और जब मैं अपनी डाइट के ऊपर काम करती थी और अपने पेशेंट्स को देखती थी, तो उनका जो है वो डाइट से वेट लॉस नहीं हो रहा होता था। और जब मैंने उसके पीछे डिग डीप किया तो मुझे पता चला कि उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो किसी ना किसी किस्म के स्ट्रेस में है। ठीक है। और फिर मैं आई इस मेंटल हेल्थ की फील्ड में। सो मैं, अब आप समझ चुके होंगे कि स्ट्रेस का या मेंटल हेल्थ का जो है वो कितना बड़ा लिंक है हमारे वेट लॉस या वेट गेन के साथ, राइट। सो हम आगे बात करते हैं। अच्छा, वर्कआउट का आप लोग, कुछ लोग पूछ रहे हैं, देखो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है ना वो दोनों के लिए अच्छी है। बिकॉज जो भी वेट लॉस करना चाहते हैं
वो अपना फैट रिड्यूस करके जब उसको कन्वर्ट कर लेते हैं मसल मास के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली वो एक हेल्दी वेट हो जाता है, ठीक है। और जिनका वेट बिल्कुल नहीं है, वो अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं तो वो अपने काफ मसल्स और अपने थाई मसल्स डेवलप कर लें, तो बहुत सारे काम जो है वो उनके आसान हो जाएंगे, जो कि उन्होंने टारगेट्स रखे हुए होते हैं कि हमारी बॉडी का वेट कम है, तो वो टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, ठीक है। मेंटल कंडीशन मैटर करती है बॉडी वेट पे, ऑफ कोर्स करती है मेंटल कंडीशन। जी आप सही कह रही हो। अच्छा अगर कुछ लोग हैं जो मैनेज करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेडिटेरेनियन डाइट्स बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो आपको सिंपल हेल्दी फैट लेना होता है और लीन प्रोटीन लेना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज होती है कि आप होल फूड ले सकते हो, ठीक है ना। होल फूड मतलब जैसा वो ग्रो हुआ है आप वो ले लो। डिफरेंट प्रोडक्ट्स लोग यूज करते हैं वेट गेन के लिए भी, साथ में रीजन देते हैं कि आई एम मिसिंग सम कमेंट्स। अच्छा हिरम, आप अपना माइक ऑन करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दो, तब तक मैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि मोस्टली ऐसे होते हैं कि स्ट्रेस में या तो वेट आपका बहुत ज़्यादा गेन होता है या बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है। तो जी ये मतलब हर किसी की बॉडी डिफरेंट रिस्पॉन्ड करती है तो स्ट्रेस में वेट कम होना तो समझ आती है, स्ट्रेस में वेट गेन होने की समझ आज तक नहीं है कि वो क्यों होता है। कैन यू प्लीज टेल मी? जी जी मैं बता। थैंक यू सो मच। डिफरेंट लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वेट गेन के लिए, साथ में रीजन देते हैं कि इसके साइड इफेक्ट नहीं होते। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? अच्छा ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चंस हो गए हैं। पहला तो इरम का है क्वेश्चन के वेट गेन कैसे होता है स्ट्रेस में। तो बेसिकली होता ये है कि जब आप स्ट्रेसफुल होते हो, आपका मूड लो होगा, आप एंशियस हो गए, तो आप बेड रिटर्न हो जाते हो, ठीक है। आप लेजी हो जाते हो, आप अपना प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ चले जाते हो, तभी आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी ये कि बहुत सारे हार्मोन्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, ठीक है। और अच्छा ये जो हम वेट गेन के लिए प्रोडक्ट्स, अच्छा वेट गेन के लिए और वेट लॉस के लिए एक्सट्रीम प्रोडक्ट्स यूज होती है, ठीक है। अच्छा मेरे नजर में दोनों के साइड इफेक्ट्स हैं, बिकॉज जब भी आप एक्सट्रीम पे जाओगे चाहे किसी भी चीज की हो, ठीक है ना, आपको कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आजकल बड़ा ट्रेंड है कि लोग ओजेम्पिक यूज करते हैं फॉर वेट लॉस, ठीक है। अब ओजेम्पिक से आपका वेट लॉस होता है बहुत एक्सट्रीम, मतलब आप जो स्टार्स को और जो मॉडल्स को देखते हैं जिन्होंने अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाई होती है, और आप उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देख के जो है वो हैरान होते हो कि यार वाओ ये कर सकती हैं, वाओ ये कर सकती हैं, बट हम जब करने जाते हैं हमसे तो वैसा नहीं होता, ठीक है, हमसे बस एक लिमिट तक होता है, ठीक है ना। तो वो इसीलिए क्योंकि वो ओजेम्पिक लेते हैं या दूसरी मेडिकेशंस भी हैं बहुत सारी, बट उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा हैं कि उसके बॉक्स के ऊपर लिखा होता है कि दिस कैन लीड यू टू द थायराइड कैंसर। तो आपने प्लीज ऐसी कोई भी एक्सट्रीम प्रोडक्ट यूज नहीं करनी। आपने अगर बहुत ज्यादा कुछ कर लेना है तो वो ये करना है कि आपने एक थेरेपिस्ट के साथ और एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ कनेक्ट होना है और उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ठीक है। हम लोग जहाँ से जो रीड करता है और वो बस अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है, दैट इज रियली वेरी डेंजरस। आज के जमाने में इतना प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वो जो प्रोडक्ट सेल करने वाला है उसको अपनी प्रोडक्ट सेल करने से मकसद है, वो आपकी जान का कोई मुहाफिज नहीं है। वो एक छोटी सी लाइन लिख देता है, जितना इंग्रेडिएंट्स जो है ना बड़ा होता है लिखा हुआ, ठीक है, बट जो है वो जो मेन मसला होता है ना वो इतना छोटा बारीक लिखा हुआ होता है कि आप जो है उसको रीड नहीं कर सकते, या बहुत आपको गौर से रीड करना पड़ता है। तो वो अक्सर इग्नोरेंट लेवल पे ही लिखा हुआ होता है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। तो एक्सट्रीम प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाया जाए। हाँ प्रोटीन्स हैं, तो आप प्रोटीन्स जो है वो सिर्फ ऐसा तो नहीं कि बॉक्स में आया तो वही ले सकते हैं,
आप वो प्रोटीन भी ले सकते हैं जो आप घर से ले लें, लाइक मीट ले लें, लाइक नट्स ले लें। अक्सर आप अपना माइक ऑन कर सकती हैं। खोल लीजिए माइक अक्सर। अच्छा मैम, मेरा ना ये क्वेश्चन था आपसे। आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है? ये आ रही है। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था कि बहुत से लोग कहते हैं कि लड़कियों को ज्यादा मल्टीविटामिन्स खाने चाहिए, मेडिसिन के सूरत में ना मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए अगर वो सही से अपनी डाइट नहीं कर रही, या बहुत सारे ना मतलब जितने भी मैं डॉक्टर्स के पास गई उन्होंने ज्यादातर मल्टीविटामिन रिकमेंड किए, लेकिन उसके साइड इफेक्ट को देखते हुए कि कोई होगा तो नहीं, तो मैं ना लेना चाह रही हूँ कि मेरी वर्किंग बहुत ज्यादा है, लाइक मैं ऑनलाइन भी कर रही हूँ और लैपटॉप पे काम करना, इससे क्या होता है मुझे ना भूख बहुत लगती है, इतनी भूख लगती है कि मेरा पेट ही नहीं भर पाता और वेट तो गेन होता ही नहीं है। और स्किन भी ना मतलब लाइक येलो येलो है, खून की कमी बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि मुझे लेना चाहिए या नहीं मल्टीवाइट? ओके, अच्छा देखो, मल्टीविटामिन्स का ऐसा है कि अगर आपके अंदर विटामिन्स की डेफिशिएंसी है तो आपको मल्टीविटामिन्स लेना है, ठीक है। बट जो आप सिम्टम्स बता रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये आयरन की डेफिशिएंसी है। तो अगर आप नहीं भी चाहते हो कि आप आयरन ना लो फॉर द होल मंथ, आप स्पेसिफिक आपका जब पीरियड का टाइम होता है तब आप जो है वो एटलीस्ट अपने लिए आयरन B12 को जरूर लो, बिकॉज उस वक्त हमारा जो है वो एक लेवल पे ब्लड लॉस होता है। तो हमारी बॉडी को ब्लड को रीडेवलप करने के लिए हमें चाहिए कि हमें मल्टीविटामिन्स लेनी चाहिए। और अ, ऐसा है कि जिसको जो मल्टीविटामिन्स की नीड है अगर वो नहीं ले रहा है तो वो कुछ और ले रहा है, ठीक है ना, तो वो उसके लिए साइड इफेक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो जब आयरन की आपकी डेफिशिएंसी है तो आपने आयरन अपना लेवल चेक कराओ, ठीक है, एंड गो फॉर अ गुड क्वालिटी मल्टीविटामिन्स जो कि आयरन स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर रही हो, उसके साथ B12 आपको दे रही हो, विटामिन के, मैग्नीशियम, ये चीजें दे रही हो, ताकि वो आयरन को बहुत अच्छे सपोर्ट करेगा, ठीक है। और आपकी ओवरऑल हेल्थ पे भी अच्छा काम करेगा। जहां तक वेट गेन का ताल्लुक है, आप जो है वो ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लो, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वो ब्रेकफास्ट नहीं लेते। आज के टाइम में मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि अपना ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, और ब्रेकफास्ट मिस करना एक बहुत बड़ी गलती है, चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम पे क्यों ना हो। मेरी नज़र में ब्रेकफास्ट मिस करना अ, कोई कोई समझदारी नहीं है। सो इरम, हम आपका क्वेश्चन जो है वो थोड़ा रुक के लेते हैं, बिकॉज अभी बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, और आगे बात करनी भी है। तो हम जो है वो पहले इस बात को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक और चीज जो कि हमें बहुत सपोर्ट कर सकती है वो है ओमेगा 3। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं वो ओमेगा 3 जब मैं कहूंगी ना तो वो जाएंगे स्टोर पे, वो लेंगे ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ठीक है। आपने अपने ओमेगा 3 को आग लगा दी, ठीक है, यस, आग ही लगा दी, बिकॉज आपको कहा गया है कि आप ओमेगा 3 लें। 6 और 9 की तो हमें जरूरत ही नहीं है, बिकॉज 6 और 9 आर अनहेल्दी ओमेगाज, ठीक है। हमने हेल्दी ओमेगा 3 लेना है। ओमेगा 3 हमें कहाँ से मिल सकता है? बेसिकली फिश के अंदर हमें जो है वो ओमेगा 3 मिल जाता है इजीली। फिश ऑयल के नाम से टेबलेट्स मिलती हैं। ओमेगा 3 देख लीजिएगा, ओमेगा 6 और 9 मत लीजिएगा, ठीक है। तो वो आपके जो हेल्थ को है बहुत सपोर्ट करती है। और अगर आपको लगता है कि आप स्टोर से नहीं लेना चाहते हैं तो बेस्ट थिंग है आप घर में देसी घी बनाएं और उसे खाएं, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा प्रोटीन फैट होगा आपके लिए। और जितना अ, आप अच्छा फैट लोगे ना उतना आपकी हेल्थ अच्छी होगी। अच्छा, एक जमाना था कि हम लोग जब बैलेंस डाइट पढ़ते थे स्कूल के टाइम पे, मैं ज्यादा पुरानी हूँ, ठीक है, तो वहां पे हमें कहा जाता था कि फैट आपने लेना ही नहीं है, ठीक है। बट अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपने फैट लेना है और हेल्दी फैट लेना है। आप रिफाइंड ऑयल्स की तरफ नहीं जा सकते, और आप रिफाइंड चीजों की तरफ नहीं जा सकते, सनफ्लावर ऑयल की तरफ नहीं जाइए, ठीक है। बल्कि आप हेल्दी फैट्स लीजिए, लाइक बटर हो गया, लाइक ये आपका ऑलिव ऑयल हो गया, या आपका देसी घी हो गया, ठीक है। अच्छा, हम लोग पहले अपनी डाइट में हमारा बड़ा देसी घी होता था। हमारी अम्मा जो है नाश्ता बनाती थी तो उसके अंदर हमें देसी घी देती थी। बट अब हम लोग बहुत अवॉइडेंट हो गए, ठीक है। अब जो है वो हम लास्ट चीज के बारे में जाते हैं जो हमारी डाइट में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम लोगों में से बहुत सारे लोग
अपनी लाइफ में अपने सुबह से रात तक के डिनर में प्रोसेस फूड खाते हैं। द वर्स्ट मिस्टेक वी आर डूइंग, ठीक है। जो हम अपने आप को इस चीज से नुकसान पहुंचा रहे हैं वो हम किसी चीज से नहीं नुकसान पहुंचा रहे, ठीक है। तो हमने इसको बिल्कुल लिमिट कर देना है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि अगर आपको कोई भी चीज विद एक्सपायरी डेट ऑन द बॉक्स मिल रही है प्लीज ना लो, ऑर्गेनिक लो, खराब हो जाए सड़ जाए बदबू आ रही है आप ना खाओ। बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। हम अपनी रूट्स को छोड़ के हम लोगों ने अपने आप को एडवांस समझने के लिए हम चोकोस खा रहे हैं नाश्ते में, एंड हमने तो सीरियल खाना है, हमने तो नगेट्स खाना है, हमने तो वो वाली ब्रांड के बर्गर खाने हैं। जो भी चीजें हैं ये सारे प्रोसेस फूड हैं और आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे बहुत सारी मदर्स भी होंगी और वो इस बात से एग्री करेंगी कि उनके बच्चे जब प्रोसेस फूड खाते हैं तो फिर वो कुछ और पसंद नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है वो अब अगली बात करेंगे, नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं। सो द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, नेक्स्ट चीज जो है ना वो हमारी है माइंड इन्फ्लुएंस स्ट्रेस एंड द गट, ठीक है। हमारा जो माइंड है वो स्ट्रेस को और गट को दोनों को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम लोग स्ट्रेस में आते हैं हमारा जो है एचपी है, ठीक है। ये एक समझ लो कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहां से हमारा एड्रेनलिन एक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, ठीक है ना। अब वो जब भी हम स्ट्रेस होंगे वो रिलीज होगा। अच्छा, उसका काम क्या है? उसका काम है, अच्छा, फ्लाइट फाइट मोड। आप लोग बहुत सारे पीछे सेशंस में अटेंड कर चुके हैं, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगी। बस आप ये समझ लो कि फ्लाइट फाइट मोड में जब भी आप जा रहे हो आपकी बॉडी से एड्रेनलिन जो है वो रिलीज हो रहा है और आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को वो हाई कर देता है। अब कॉर्टिसोल लेवल्स जो जब आपके हाई होते हैं तो आप जो है वो जज्बाती हो जाते हो, गुस्से में आ जाते हो, आपके हाथ पांव आपके आपका दिमाग आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब उसका जो है वो गट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? गट पे आपके ये इफेक्ट पड़ता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाने लगते हो आपका पेट अपसेट हो जाता है। एग्जाम से पहले जो है वो आपके पेट में बटरफ्लाईज डांस करने लगेंगी, या फिर अ, जैसे आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू से पहले जो है वो आपने जो है वेटिंग के टाइम पे आपको बाथरूम की फीलिंग आएगी कि हाँ यार मुझे अभी बाउ मूवमेंट ले लेना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है वो हमारे कोर्टिसोल की वजह से हो रही होती है, ठीक है ना। तो और ये ऐसी चीजें हैं कि जब ये कंटिन्यूसली होती रहती है ना तब ये नुकसानदेह, ठीक है। कभी कभार हो रही है इट्स ओके, ठीक है। तो कभी कभार सबके साथ हो सकती है, बट अगर ये कंटिन्यूसली हो रही है इसका मतलब है कि कंटिन्यूस आप एक एंशियस स्टेट में जा रहे हो और आपकी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल लेवल्स हाई हो रहे हैं। अच्छा, कोर्टिसोल लेवल्स अगर जब हाई होते हैं तो फिर आपका वेट गेन, कोर्टिसोल क्या करता है कि आपके बॉडी को बोलेगा भाई आपने जो है वो फाइट पे काम करना है, ठीक है। डाइजेशन पे हम काम कर लेंगे, खाना पड़ा रहे कोई मसला नहीं है, हम वो तो देख लेंगे, अभी तो हमने जंग लड़ ली, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी फाइट मोड में, ठीक है। तो इसी वजह से कोर्टिसोल लेवल हाई होने की वजह से आपका वेट गेन हो रहा होता है अक्सर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, जबकि आपके सामने शेर नहीं होता ना, आपने भागना होता है। बट होता ये है कि आपका कोर्टिसोल लेवल हाई होता है तो आपका ब्रेन जो है वो कहता है, मैसेज देता है कि भाई डाइजेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, सेविंग योर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अच्छा, अब बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने एसिडिटी होती होगी और वो एंटी एसिड ले लेते होंगे। कोई है यहाँ पे जिनको एसिडिटी होती है और वो एंटी एसिड लेते हैं? मैम मैं तो कोई टैबलेट यूज नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि दवाई तो निहायत नुकसान दे, लेकिन कभी कभी जब सुअर पेन है ना, बहुत सुअर पेन है, सिर्फ उस सूरत में सिर्फ पैनाडोल, उसके अलावा मैं कोई दवाई यूज नहीं करती। ओके, अच्छा, मैं एंटी एसिड की बात कर रही हूँ। जब आपको एसिडिटी होती है आपको डॉक्टर एक व्हाइट कलर का सिरप देता है या व्हाइट कलर की एक टैबलेट देता है जिससे आपकी एसिडिटी कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, मतलब यहाँ पे लगता है ज्यादा यंग लोग हैं, ठीक है। तो हम जो है वो देखो, जब हमें एसिडिटी होती है तो हम लोग एंटी एसिड लेते हैं, ठीक है ना। वो लेना हमारे लिए इतना नुकसानदेह होता है बिकॉज हमें एसिडिटी होती ही इसीलिए है कि हमारी बॉडी के अंदर एसिड कम है। जी इरम।
मैम एसिडिटी को कम करने के लिए वो जो आप सिरप बोल रहे हैं, आई थिंक वो म्यूकिन सिरप होता है और ओमेगा कैप्सूल होता है जो बिफोर ब्रेकफास्ट आपको लेना होता है। तो मोस्टली मेरी अपनी फैमिली में, मेरे अपने घर में जब एसिडिटी होती है तो या वो ओमेगा कैप्सूल लेना शुरू कर देते हैं या फिर म्यूकिन सिरप। जी, तो मैं इन्हीं की बात कर रही थी, बिकॉज इन चीजों से क्या होता है कि आपकी बॉडी, अब दवाई का नाम किससे क्लियर है कि एंटी एसिड है, आपकी बॉडी के एसिड को कम करेगी। बेसिकली आपका जो एसिडिटी होती है ना, उसकी रीजन ये होती है कि आपके जो गट है और एसोफेगस है, इन दोनों के बीच में एक समझ लो एक डोर है, ठीक है, जो कि बंद होना चाहिए, ठीक है। बट जब आप स्ट्रेसफुल होते हो तो वो ब्रेन आपका जो है वो कहीं और बिजी होता है और आपका वो डोर जो है वो बंद नहीं होता, ठीक है। और जब वो डोर बंद नहीं होता ना, तो आपकी एसिड जो है वो आपको यहाँ पे ओसोफेगस की जगह पे फील होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है वो हम एसिडिटी के अंदर जो है वो हम चाहते हैं कि हम रिलैक्स करें अपने मसल्स को। तो बेस्ट चीज ये होती है कि आप अपने आप को मैग्नीशियम दो, ठीक है, ना कि आप जो है वो अपने आप को एंटी एसिड दो, ठीक है। आप मैग्नीशियम दोगे तो आपकी बॉडी के अंदर एक रिलैक्सेशन का मोड ऑन हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली एसिडिटी रिलैक्स हो जाएगी, वो डोर जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि आपके गट के अंदर जो है वो एसिड कम है, ठीक है, अगर एसिड कम है तो वो खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है कि एसिड अपने यहाँ सेकेंडरी देना है। लाइक आपने अपने खाने से पहले जो है वो एप्पल साइडर विनेगर विथ वाटर ले लो, ठीक है। उसके 15-20 मिनट बाद आप खाना खाओ, आपको खाने में कभी भी इंडाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनको इंडाइजेशन का इशू होता है और वो सिर्फ इतनी सी टिप से ठीक हो जाता है, बट डॉक्टर अपनी दवाई को बेचने के लिए जो है वो आपको एंटासिड पे लेके जाएंगे, क्योंकि उनका वो, आपको पता है कि यहाँ पे क्या सेटअप है, ठीक है। तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आईबीएस जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है ना। जो हम मेंटल मेंटल हेल्थ को अगर हमें अच्छा कर लेते हैं तो हम आईबीएस के इशू को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आईबीएस का मतलब होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है। उसमें होता ये है कि आपका पेट कभी खराब हो रहा है, कभी आपको लूज मोशंस की तरफ जा रहे हो, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी आपको गैस हो रही है, कभी आपको ब्लोटिंग हो रही है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, ठीक है ना। तो वो मिक्स सिम्टम्स जो होते हैं ना, ये किसी भी मेडिसिन से सही नहीं होते। बट अगर आप मेंटल हेल्थ को अच्छा कर लो अपनी, तो आईबीएस का इशू बिल्कुल कंप्लीटली जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो कि इशू हमारे बहुत सारे लोगों के अंदर होता है, सीबो का इशू, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि उनको सीबो का इशू हो रहा है। सीबो में होता ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाती है। जी इकरा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, जैसे अभी आप कह रही थी कि जो मिक्स सिग्नल्स होती हैं उनका वाकई ट्रीटमेंट नहीं है। मैं खुद मतलब तकरीबन पिछले 2 साल से यही सेम इशू मेरे साथ हो रहा है और मैंने हर डॉक्टर को दिखाया है। मैंने आगा खान से ट्रीटमेंट कराई है, एंडोस्कोपी कराया है, सीटी स्कैन, पर अभी तक मतलब मेरी कंडीशन ठीक नहीं होती। ऐसे ही है, स्ट्रेस की वजह से मतलब हर टाइम पेट में दर्द होना, या तो कभी लूज मोशन, कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन। सो इसका मतलब आप एग्जैक्ट वो बताएं कि किस तरह बंदा इन चीज़ों से, क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट कराई है, हर एक डॉक्टर के पास मैं गई हूँ, मेडिसिन का है, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं आता। जी इकरा। तो जी, अब थैंक यू मैं मैम। इसके बारे में ही आगे जाके बात करूंगी, पहले मैं थोड़ा सा सीबो के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके बारे में ही बात करेंगे, ओके। श्योर तो श्योर मैम, थैंक यू। सीबो में ये होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है, वो जो अनहेल्दी बैक्टीरिया जो आपके कॉलन की तरफ से आ रहे हैं, उनकी ओवर ग्रोथ हो जाती है। सीबो का फुल फॉर्म है स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ, ठीक है। तो सीबो में ये होता है कि आप को बहुत ज्यादा एलर्जी हो रही होती है, स्किन पे एलर्जीज हो रही होती है, या फंगसेस आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं, और राउंड जो व्हाइट कलर के रिंग्स होते हैं, अक्सर लोगों की बॉडी पे होते हैं और वो उसको इग्नोर करते हैं, बट ये सब साइंस है सीबो, ठीक है ना। और सीबो भी आपकी मेंटल हेल्थ को उसी तरह इफेक्ट करता है जैसे कि ये आईबीएस करता है, या किसी भी किस्म का जो स्टमक का डिस्ट्रप्शन है वो आपको
जिस तरह से प्रॉब्लम करता है, इसी तरह से सीबो भी आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि हम क्योर की तरफ आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्योर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है माइंडफुल एंड मेडिटेशन। ठीक है ना, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। माइंडफुलनेस का एक सिंपल सा सेंटेंस में बात समझाऊंगी, आई होप कि आप लोग को समझ में आ जाए कि इस वक्त आप जो काम कर रहे हो, आपके हाथ पांव आंख नाक कान मुंह या हर आपका जितना भी सेंसेस है वो सारे उसके साथ अटैच है। लाइक मैं बिरयानी बना रही हूँ, उसके साथ मैं हेडफोन्स लगा के कुछ सुन भी रही हूँ, साथ में मैं अपना लेसन भी कर रही हूँ, तो ये मैं 3 काम कर रही हूँ। ठीक है ना, हम जिसको मल्टीटास्किंग बोल के बड़ा फैसिनेट करते हैं, वो हमें कभी भी हेल्प नहीं कर सकता। हमारी माइंडफुलनेस हमें हमारे काम को अच्छे तरीके से करने के लिए हमें हेल्प करती है, और माइंडफुलनेस के साथ अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें उसके अंदर स्ट्रेस नहीं। बट अगर हम मल्टीटास्कर हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं कि एक टाइम पे मैं भी अपने आप को मल्टीटास्कर समझती थी और मैं चाहती थी कि मैं मल्टीटास्किंग करूं, कि एक तरफ बच्चे भी देखूं, एक तरफ ये भी करूं, एक तरफ वो भी करूं। बट अब जो है वो मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि मैं अगर कोई एक काम कर रही हूँ तो अपना माइंड फुली जो है वो उसकी तरफ लगा कर करूँ। ठीक है, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। मेडिटेशन अभी हम लोगों ने जो डीप ब्रीदिंग की थी वो बहुत छोटी सी थी, बट अगर आप उसको ही 15 to 20 मिनट्स करते हो तो वो आपका मेडिटेशन बन जाता है। ठीक है, तो अगर आप अपने आप के ऊपर और अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करते हो तो आपकी स्ट्रेस रिडक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है वो है लोअर द कॉर्टिसोल लेवल्स। हम लोग अपने कॉर्टिसोल लेवल्स को माइंडफुलनेस के थ्रू, वही हमारा जो है वो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जब होगा तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, हमारा स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, हमारे गट फंक्शनिंग में भी हमें सपोर्ट मिलेगा। और अगर हम जो है वो चाहते हैं कि हमारे गट को जो है वो एक पॉजिटिव वे में हम उसको लेके चले, तो हमें माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को बहुत अच्छे से करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग है सीबीटी। अच्छा, सीबीटी का मतलब होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। आई थिंक ये पीछे 10 सेशंस हो चुके हैं, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बात किया होगा। सीबीटी में बेसिकली हम चाहते हैं कि जी हम आपको लेते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, सीबीटी में हम जो है वो बेसिकली अपनी थॉट्स को रीप्रोग्राम करते हैं, रीसेट करते हैं, और अच्छे तरीके से पॉजिटिवली हम उसको सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, इसमें ये बुरी चीज हुई है, इसके अंदर हमारा फायदा क्या है, हम किस तरह से पॉजिटिवली इसको लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, अच्छा, अब जो नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात हो रही है वो होगी बेसिकली क्लिनिकल हिप्नोसिस। ठीक है, क्लिनिकल हिप्नोसिस क्या होता है? देखो, जब हम माइंडफुलनेस और मेडिटेशन कर लेते हैं उसके बाद भी अगर हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो हम जो है वो अपने आप को क्लिनिकल हिप्नोसिस की तरफ लेके जाएंगे, बिकॉज कुछ चीजें होती है जो कि हमें गाइडेड करनी होती है। तो क्लिनिकल हिप्नोसिस में होता बेसिकली ये है कि हम अपने ब्रेन को जो है वो सब कॉन्शियस को में जाके उसको पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं, और जो हमारी पुरानी हैबिट्स हैं हम उनको चेंज करते हैं, और हम जो है वो नई हैबिट्स अपने अंदर मतलब अपनी लाइफ में इनपुट करना चाहते हैं, तो हम जो है वो सीबीटी हम क्लिनिकल हिप्नोसिस की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसमें आप ये समझ लो कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, वो चाहता है कि मैं स्मोकिंग छोड़ूं, बट वो नहीं छोड़ पा रहा है, हम उसको हिप्नोसिस की तरफ लेके जाएंगे। इसी तरह जिन्होंने अभी बात की थी आईबीएस के बारे में, ठीक है, तो आईबीएस में भी यही होता है, आप चाह रहे हो कि आपका आईबीएस ठीक हो जाए, आपका माइंडफुलनेस और मेडिटेशन हो गया, ठीक है, तो फिर आपने आना है क्लिनिकल हिप्नोसिस की तरफ। अच्छा, हिप्नोसिस जब वर्ड आता है ना सामने, या हिप्नोटिस्ट आता है या हिप्नोथेरेपी आता है, तो लोग समझते हैं भाई ये स्टेज की कोई बात, ठीक है, कोई ड्रामा होगा, आप अपने कॉन्शियस से बिल्कुल बाहर हो गए और आपके सबकॉन्शियस को एक्सेस कर लिया जाएगा, या लोग आपके अंदर से आपके पासवर्ड्स निकलवा लेंगे, या आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी मर्जी के बगैर बाहर आ जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। जो क्लिनिकल हिप्नोसिस होता है वो कंप्लीटली कंसेंट के साथ होता है, हमारे टारगेट्स पहले से सेट होते हैं और हम उन्हीं टारगेट्स के बारे में बात करते हैं, और हमारा जो क्लाइंट होता है उसका कॉन्शियस
एक्टिव होता है, वो कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस को जो है वो अचीव करता है. सो देयर इज नथिंग लाइक स्टेज हिप्नोसिस. ठीक है. अच्छा, हिप्नोसिस में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो कि है पेन मैनेजमेंट. जिस तरह हमारा जो गट मैनेजमेंट है, हमें लगता है हम इस वर्कशॉप से पहले जो है वो हमें इस बात का एहसास नहीं था कि हम जो है वो हिप्नोसिस के थ्रू जो है वो किस तरह से कर सकते हैं अपने गट को मैनेज. ठीक है ना. इसी तरह पेन मैनेज भी हम कर सकते हैं थ्रू हिप्नोसिस. ठीक है ना. अब वही सेम टेक्निक्स होती हैं. हम जो है वो देखते हैं कि आपको किस तरह से आ रहा है. अच्छा, ऑटो इम्यूनिटी में जो ये पेन मैनेजमेंट है ये काम होता है इसके अंदर. ठीक है ना. हिप्नोसिस, क्लिनिकल हिप्नोसिस में. ठीक है. आगे हम चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. आई थिंक मैं इसको जल्दी वाइंड अप करूंगी. ये आई थिंक ये लास्ट है ना. हाँ, नहीं, इसके बाद एक और. ठीक है. ओके. अच्छा, हम जब अपने गट की हेल्थ के बारे में बात करते हैं, हम आईबीएस के बारे में बात कर चुके हैं. ठीक है. अच्छा, हम हिप्नोसिस के बारे में थोड़ा और बात करते हैं कि हिप्नोसिस जो है वो दूसरे थेरेपी से ज्यादा अच्छा कैसे है. हिप्नोसिस दूसरी थेरेपी से इसलिए ज्यादा अच्छा है बिकॉज इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है. ठीक है. और एक बार आपने हिप्नोसिस के थ्रू एक चीज को रिवर्स कर लिया, आपकी बॉडी वो लर्न कर लेती है, वो एक टेक्निक को लर्न कर लेती है कि अब जो है वो मुझे आईबीएस की तरफ नहीं जाना. ठीक है. अब जो है वो मैं किसी और तरीके से जाऊंगी. अच्छा, इसमें हमारी जो एक स्पेसिफिकली गट डायरेक्शनल हिप्नोसिस होती है, जीडीएच जिसको हम कहते हैं इन शॉर्ट फॉर्म. ठीक है ना. वो हमें बड़ा हेल्प करती है हमारे विजुअल हाइपर एक्टिविटी के साथ. अच्छा, ये क्या होता है. ठीक है. हमारे जो ऑर्गन्स है, ठीक है, जैसे कि चेस्ट हो गया, एब्डोमेन हो गया या पेल्विस हो गया. ठीक है. ये ऑर्गन जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, हार्डन हो जाते हैं. अच्छा, क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन है, हमें इनमें पेन नहीं हो रहा होता, बट इनके अंदर एक टिंगलिंग हो रही होती है या परेशानी होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को एंजाइटी है, उसको चेस्ट में पेन हो रहा है. ठीक है. ठीक है. वो पेन नहीं होता, बट वो पेन की तरह एक अनसर्टेनिटी होती है, अजीब सी फीलिंग कह सकते हो आप उसको. ठीक है ना. तो हमारी जो जीडीएच थेरेपी होती है, गट डायरेक्शनल हिप्नोथेरेपी, उसमें हम जो है वो आपको स्पेसिफिकली इन चीजों के और इन ऑर्गन्स को रिलैक्स करना सिखा देते हैं. जैसे कि आपका चेस्ट हो गया, आपका एब्डोमेन हो गया, पेल्विस हो गया, इस तरह शोल्डर्स हैं, आपके टेल बोन होता है, वहां पे आपका बहुत सारा स्ट्रेस होता है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. मैम मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पर, जी छोटा सा ही है. जी मैम जी. ये कि जब हम हिप्नोसिस या इस तरह की कोई भी चीज या अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं ना, क्योंकि अब हम साइकोलॉजिस्ट बन रहे हैं तो हमें सिखाई जाती है प्रैक्टिकली चीजें, तो सर में बड़ा दर्द होता है, सर घूमने लग जाता है, चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं. इसकी क्या रीजन है? अच्छा, देखो, जब भी आप हिप्नोसिस की तरफ जाते हो, आप कोशिश करो कि आप किसी ट्रेंड इंसान के साथ जाओ. बिकॉज अगर आप हिप्नोसिस से फौरन जो है वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आना चाहोगे ना, तो आपको जो है वो बहुत प्रॉब्लम होगी. तो आपने कोशिश करनी है कि किसी एक्सपर्ट के साथ जाओ, बिकॉज उसको पता है कि आपको किस तरह उसके अंदर ले जाना है और किस तरह उससे बाहर निकालना है. मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो कि हिप्नोसिस कर रहे होते हैं, वो ट्रेंड नहीं होते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से, तो वो एकदम से बंदे को बाहर लेकर आते हैं और फिर उसके रिजल्ट में उनको नोजिया, हेडेक या ऐसी चीजें हो जाती हैं. और ये चीजें जो है, आप सही कह रही हो कि ये चीजें जो है वो एक दिन तक नहीं रहती, बल्कि वो एक एक वीक तक भी रह सकती है. तो हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि किसी एक्सपर्ट के साथ मिलकर ये चीज पे काम करें. अच्छा इरम, आप भी अपना क्वेश्चन पूछ लो, फिर मैं लास्ट स्लाइड की तरफ जाती हूँ. Thank you so much, ma'am. Actually, today topic is very interesting. That's why मैं again and again hand raise कर देती हूँ. But I want to say something for you. That you have a lot of knowledge, especially about gut, and I think you should be a gastroenterologist in the future, and I will be your first patient. अच्छा, खैर इसमें ये है कि ऑफ कोर्स उसके लिए हमें डिग्री करनी पड़ रही है, और फिलहाल मैं अपनी फैमिली लाइफ No, के you can do it without degree. नहीं, विदाउट डिग्री. वही वाली बात है ना कि हमने हजाम नहीं बनना. ठीक है ना. सो हम जो हैं वो हैं.
ठीक है, और हमने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है अपने आप No, को। ma'am, I felt that you really have a lot of knowledge and you explained each and everything in very detail and I really appreciate you. थैंक यू सो मच इरम, और आपका प्यार मेरे लिए है, यही अच्छी बात है। ठीक है। और मैम मेरा एक क्वेश्चन भी था, ये जैसे अभी जी। आपने बात की टिंगलिंग की कि जब आपको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस या चेस्ट पेन होता है तो साथ में आपको टिंगलिंग भी होती है। मैम जब ये टिंगलिंग होती है तो बॉडी सेंसेशंस या आपके डिस्टर्ब होती है, तो देन व्हाट विल वी डू इन दिस सिचुएशन? ओके। देखो, जब आपको टिंगलिंग हो रही है, आपको ये तो बता रही हूँ कि देखो ये चीजें हैं थोड़ी सी ज्यादा एडवांस। ठीक है, अब इसमें ये है कि हिप्नोसिस, प्रॉपर क्लिनिकल हिप्नोसिस आपने लेना है। ठीक है, अगर आप इसको प्रॉपर क्लिनिकल हिप्नोसिस नहीं लोगे तो वही जैसे उन्होंने बात की अक्सर, राइट, उन्होंने बात की कि मुझे हेडेक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें आप बगैर किसी एक्सपीरियंस के साथ लर्न करे बगैर खुद से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें आपने कुछ ना कुछ, आपने कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करना है। जी अक्सा, आप बोल सकती हो। मैम मैंने ना हिप्नोसिस सीखना है और मैं अपनी लाइफ में ये चीज जरूर करना चाहूँ क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन रही हूँ मैं। तो इसके लिए ना मैंने काफी लोगों को देखा है, कितना चार्ज करें, सिखाते कुछ भी नहीं है। मतलब क्या सिखा रहे होते हैं, जस्ट रिलैक्स कर ले अपनी बॉडी को, इस तरह थोड़ी एक्टिविटी जो हम रोजमर्रा के व्यापी नॉर्मल सीखते होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आपको कोई कोई ऐसा हिप्नोसिस ट्रेंड बंदा हो कि भाई उसको डीपली चीजों का पता है, कि उसको प्रोफेशनली इतना पता है कि हमने किस तरह से हिप्नोसिस को लेके चलना है, या अगर हम किसी को सिखा रहे हैं तो हमने कैसे सिखाना है। अगर वो मैंने देखा है रिसेंटली एक दो, तो 80,000 तक वो चार्ज कर रहे हैं और सिखाते कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, तो ये बात है मेरी कि अगर आपको कोई पता है कि फैसलाबाद के अंदर, ओके, अच्छा, खैर मुझे फैसलाबाद के अंदर नहीं पता, बट मैं खुद अपनी सर्विसेज ऑनलाइन देती हूँ 1-on-1। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपस में बात कर सकते हैं, बट जो आप बात कर रहे हो ना, वो आपकी बात किसी हद तक बहुत सही है, बट किसी हद तक जो है ना, वो आपको ये समझने की जरूरत है कि देखो हिप्नोसिस स्टार्ट होता है डीप ब्रीदिंग से। ठीक है, तो आपको मल्टीपल ब्रीदिंग स्टाइल पहले लर्न करना है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो जज्बाती कौम है, पाकिस्तानी कौम है। ठीक है, तो हम लोगों के अंदर ऐसा होता है कि भाई हाँ, पहले दिन आए, हम दूसरे दिन आए, और बस अब तीसरे दिन तो हमें एक्सपर्ट हो जाना चाहिए, हमें हर चीज का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। बट दिस इज नॉट द केस। ठीक है, अब आप मैंने वेरी स्लो लेके चलना होता है, एंड आपको सिर्फ हिप्नोसिस लर्न नहीं करना होता, बट जो प्रोफेशनल सेटिंग होती है उसके अंदर आपका ये होता है सेटअप कि आप लर्न करते हो, फिर अपने टीचर के सामने अपने क्लाइंट्स को डील करते हो। आपके जब आवर्स कंप्लीट होते हैं ना, कि आपने इतने आवर्स की ट्रेनिंग कर ली है, तब जाके आपको आपकी सर्टिफिकेशंस मिलती है। बट हम लोग वही पाकिस्तानी जज्बाती कौम। यही मेरा सवाल था आपसे, जो आपने अभी बात बताई है कि फटाफट वो जो मैंने जिनसे एक दो दफा लेक्चर लिए ना, वो भी जल्दी जल्दी सिखा रहे हैं। मतलब हमें बताते नहीं है कि बेसिकली इसमें, अगर आप जैसे आपने बताया ब्रीथिंग की भी टाइप्स होती हैं, इसकी भी लर्न हमने स्टेप बाय स्टेप। अब उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट स्टार्ट करवा दिया कि डीप ब्रीथ स्टार्ट करें, आंखें बंद करें। उससे क्या हुआ, अचानक सर में दर्द स्टार्ट हो गया और अचानक से हमारी आंखें खोल दो, बस दैट्स इट। हर तो तरह ये चीजें ना अब सही नहीं है। मतलब मैं फिर इस हवाले से यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि बात भाई सच में ऐसा कुछ होता होगा। देखो, हर तरह का इंसान होता है, और हमारा जो है वो दुनिया में हर तरह के लोगों से इंटरेक्शन होता है। तो इट्स ओके कि हमें अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी मिलते हैं, बट बुरे लोग हमारे लिए एक एक्सपीरियंस होते हैं, और हमें जो है वो बुरे लोगों से सीखना चाहिए कि हम उनको फॉलो ना करें। ठीक है, बट इन दैट केस आप ये नहीं कह सकते कि हिप्नोसिस एक ऐसी चीज है जिससे आपको हेडेक हो गया। ठीक है, आप ये जरूर कह सकते हो कि हम जिनके साथ चल रहे थे उनके साथ हमारी वाइब्स मैच नहीं करी, या उनको उनका जो ट्रेनिंग का तरीका था वो हमें अच्छा नहीं लगा। बिकॉज हर किसी का एक ट्रेनिंग का तरीका होता है। लाइक मैंने अभी जो है ना वो चीज बनाई थी 45 मिनट्स की, और मैं जो वो 1.25 घंटे से बोल रही हूँ, और मुझे लग रहा है अब इफ्रा का जो है ना वो मुझे टूट टूट आ जाएगा।
अच्छा मैम, मुझे ना एसिडिटी भी बहुत ज्यादा होती है, लाइक गैस हो जाना पेट के अंदर, और इस तरह मतलब मैं शायद ओवरली वर्क करती हूँ। ओके। तो इसके लिए आप थोड़ा सा बस मेडिसिन से थोड़ा दूर से हट के ना, थोड़े और चीज घरेलू टोटके टाइप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे? देखो मैग्नीशियम जो है वो हमें नट्स वगैरह से भी मिल जाता है, ठीक है, तो आप अपने आप को नट्स वगैरह पे स्विच कर सकती हो। बट अगेन मैं आपको ये बात बता दूं कि हम लोग जिस जमाने में जी रहे हैं ना, हमें कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्स जाना पड़ेगा, ठीक है। सप्लीमेंट्स मेडिसिन नहीं होते, ठीक है, तो सप्लीमेंट्स के साथ जाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो हम अगर सप्लीमेंट्स के साथ चले जाएं तो इसमें कोई मसला नहीं है और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप एटलीस्ट मैग्नीशियम लो टिल योर बॉडी गेट रिलैक्स्ड, उसके बाद आप मैग्नीशियम छोड़ दो, ठीक है। और जहां तक एसिड की बात की, तो वहां पे मैं आपको बता दूं कि आपको जो एसिडिटी हो रही है ना, उसका रीजन ये है कि आपकी बॉडी में एसिड कम बन रहा है। तो आप एंटी एसिड की जगह पे आप एप्पल साइडर विनेगर की तरफ जाओ, और एप्पल साइडर विनेगर आपने उसको पानी में डालना है, उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डालना। अच्छा, एप्पल साइडर विनेगर का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप जो है वो फर्स्ट 1 टीस्पून से नहीं स्टार्ट कर सकते, आपने 1/4 टीस्पून से स्टार्ट करना है उसको, बिकॉज आपके थ्रोट को जो है ना उसकी आदत नहीं होगी, ठीक है। तो वो एक ग्लास में आपने 1/4 टीस्पून विथ सॉल्ट डालना है और उसको जो है वो लेना है, बिकॉज आपका गला खराब नहीं हो। वरना अगर पहली बार में आपका गला खराब हो गया ना, तो आप दूसरी बार उसको नहीं लोगे कि हाँ मैंने विनेगर लिया था, ठीक है। मैम तो थैंक यू सो मच, इतने अरसे से मैं सवाल पूछना चाह रही थी, जो हम सप्लीमेंट ले रहे हैं इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? कोई बंदा इस चीज के ऊपर बात नहीं करता, नहीं जी नहीं इसके बहुत साइड इफेक्ट हैं, क्योंकि हम लड़कियां ना, लड़कियों को इन चीजों की शायद ज्यादा जरूरत होती है। तो थैंक यू सो मच, आपने ना इतनी ये जेंडर, अरसे के लिए ना क्लियर कर दिया मुझे। ठीक है, नहीं नहीं ये जेंडर के बारे में नहीं है, बट ऑफ कोर्स ये सबके लिए है कि हमें अपनी हेल्थ का ऑफ कोर्स ख्याल रखना चाहिए और साइड इफेक्ट्स के साथ साथ इफेक्ट्स भी देखने चाहिए। मैम जी। आई थिंक ये जो एसिडिटी की अभी बात कर रही थी, तो आई थिंक के सप्लीमेंट से बेहतर है कि आप अपनी फास्ट फूड को अवॉइड करें और लेस स्पाइसेस डाइट लें, और साथ में जो है ना फ्रेश वेजिटेबल्स लें, सैलेड लें, तो इससे भी काफ़ी इफेक्ट आता है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। जी, मैं आपकी बात के साथ बिल्कुल एग्री करूंगी। हम लोग जो है वो प्रोसेस फूड के बारे में बात कर चुके हैं, मैं आपकी सारी बातों के साथ एग्री करती हूँ, बट एक चीज जिसके साथ मैं डिसएग्री करूंगी वो है स्पाइसेस। हम लोगों ने अपनी जिंदगी से सच में स्पाइसेस निकाल दिए हैं, बट स्पाइसेस की जो वैल्यू है ना, वो हमसे ज्यादा ब्रिटिशर्स समझते हैं। आज आप देख लो क्लोव टी, पेपरमिंट टी, ये टी वो टी, आप देख लो जितने भी सिनेमन टी, जितने भी ये टी है ना, ये हमारे लिए हेल्दी है, ठीक है। हम लोग यस मैम, ये जो चिली है ये हमें विटामिन सी जरूर देती है, इस ये होनी चाहिए, लेकिन इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। मतलब बेनिफिट एक ही है कि वो विटामिन सी देती है, लेकिन एसिडिटी बहुत ज्यादा करती है ये। कौन सी प्लीज? ग्रीन चिली या रेड चिली की बात, मतलब ओके चिली, स्पाइस की। आप चिली की बात कर रहे हो, बट मैं जो हूँ वो वाले स्पाइसेस की बात कर रही हूँ, जो कि हमारे गरम मसाले होते हैं बेसिकली। ब्लैक पेपर हो गया, सिनेमन हो गया, ठीक है, क्लोव हो गया, ये चीजें जो है वो हमारे मतलब पहले जो है ना, वो सुबह खाना, नाश्ता, नाश्ते के बाद जो लंच बनता था ना, उसमें भुनाई होती थी इन चीजों की, और हमारे खानों में इसकी खुशबू होती थी। बट अब हमने इन सब चीजों को अवॉइड कर दिया, हम लोग प्रोसेस फूड नगेट्स खाने में बड़ा इंटरेस्ट है हमें, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग जो है वो मैम बर्गर। कॉफी का भी एक दफा बता दें कि कॉफी अगर हम क्योंकि ज्यादा जागना होता है, नींद तो पूरी कर रहे हैं, साथ साथ अगर कॉफी एक हफ्ते में पी लें तो कोई इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है? लाइक वो कोई लोग होते हैं बहुत ज्यादा एक्सेसिव कॉफी पीते हैं और इस तरह, तो थोड़ा सा इसका बता दें। ओके, अच्छा, कॉफी की जहां तक बात है, कॉफी बड़ी एक अच्छी चीज है, क्योंकि वो जिस तरह आपकी ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, कॉफी भी वही काम करती है। बट जब आप कॉफी ले रहे हो, आपने वाटर इनटेक अच्छा लेना है अपना, बिकॉज कॉफी आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं ड्राई करती है, ठीक है, आपके कॉलन के अंदर ड्राइनेस क्रिएट करेगी, क्योंकि वो उसका काम यही है, एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है ना, वो बुरी चीजों को निकालने के लिए आई है। तो आपने वाटर इनटेक बहुत अच्छा लेना है। बाकी आप चाहो तो दिन में 2 कप पियो, कोई मसला नहीं और है। तेज पत्ती वाली चाय, इसका भी बता दें, मुझे बहुत पसंद है लेकिन अच्छा, मैं अवॉइड नहीं कर सकती उसको। चाय में जब तक आप ब्लैक टी पी रहे हो, वेरी गुड। अच्छा, कॉफी में भी ब्लैक, ठीक है। आप अगर उसके अंदर अलग से मिल्क डाल रहे हो, तो फिर उसकी कंपोजिशन कुछ और है, ठीक है। तो अलग से मिल्क नहीं डालना है आपने।
ठीक है। आपने जो है वो ब्लैक टी पीनी है, ब्लैक कॉफी पीनी है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो ब्लैक कॉफी के साथ आप बटर ट्राई करके देखो, बहुत मजा आता है और आपके जो डाइट के जो इश्यूज हैं, जो आपके गट के इश्यूज हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपने फुल ऑफ एनर्जी रहना है, आपने घर से बाहर भी रहना है और आपने अपनी एनर्जी भी लूज नहीं करनी है और आपके पास मील लेने का भी टाइम नहीं है, तो फैट आपको जो है वो बटर वाला अच्छा खासे आवर्स जो है वो आपको चलने में हेल्प भी कर देता है, वेट लॉस में भी हेल्प करता है। मैम ये जो कॉफी और टी की बात हो रही है ब्लैक, इसमें कैफीन होता है और ये अगर आप किसी ऑर्थोपेडिक्स के सामने बात करें तो वो इतना उससे बातें सुनाते हैं, वो कहते हैं कि इसमें कैफीन होती है और ये आपकी बोन्स को वीक करती है और आपकी स्पेशली जो नी पटेला जॉइंट होता है उसमें जो आपका बोन मैरो होता है उसको ये बहुत ज्यादा खा जाती है और ओल्ड एज से पहले ही आपके जो है ना वो आर्थराइटिस का इशू हो जाता है, तो वो हमेशा अवॉइड करने का ही कहते हैं इसमें। ओके वो कहते हैं कि आप इसकी जगह ऑल्टरनेट, मतलब आपको बहुत क्रेविंग हो रही है, आप पूरे डे में 1 कप लें और कोशिश करें कि उससे भी आहिस्ता आहिस्ता कम लें और आपको जब क्रेविंग हो तो आप इसकी जगह मिल्क लें। ओके इरम, मैंने इसकी आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई कि आपने ब्लैक कॉफी लेनी है और ब्लैक टी लेनी है। वो इसीलिए क्योंकि आपने उसमें मिल्क नहीं डाला, तो उसकी कंपोजिशन डिफरेंट है, और जब आप उसके अंदर मिल्क डालते हैं ना तो फिर वो चीज हो जाती है कुछ और। ठीक है। All right, then I think we should wrap it up. आई डोंट What a wonderful session it was. Our participants have, I'm sure, a lot of other questions. So I'm going to turn on my WhatsApp group chat, and over there, you all can share your feedback and whatever questions that you have. All right. आई थिंक We'll मैंने कुछ wrap it questions up now, and thank you so much, Miss Mavish, for your expertise, the way you have shared everything, the way you have connected the dots between nutrition, mental health, and I'm sure it has cleared a lot of doubts and queries which we all had. And I loved it how you have simplified these complex concepts. राइट आपने बड़े ही क्लियर वर्ड्स में और एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया है, सो आई वांट टू थैंक यू so much, and also thanks to the participant, each and every one of you, for taking out your time and to be with us today. Thank you so much for your attention, for your engagement, and whatever feedback that you have, you can always share on the group. And I think अगर हम इसको बंद नहीं करेंगे तो people are going to ask more questions, and then I don't think कि ये कभी wind up होगा. So मैम आई थिंक कि ये टॉपिक एक बार अगेन रखना चाहिए, ये स्पेशली फीमेल्स के लिए था और बहुत इंटरेस्टिंग था और रियली वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस स्टिल। यस मैम, हम भी Thank चाहेंगे you. कि आप दोबारा अरेंज करें इसको। Inshallah, we'll definitely do it. Stay tuned for upcoming sessions. Until then, take care of your mind, your soul, and your body. Allah Hafiz from my side, and thank you so much. थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर वर्किंग विथ यू अफरा, एंड इंशाल्लाह हम इसको रिकनेक्ट जरूर कर सकते हैं, एक और सेशंस भी ले सकते हैं। और बहुत अच्छी ऑडियंस आपकी है और उनके साथ बात करने में और काम करने में माशाल्लाह बहुत मजा आया। आई थिंक समवन इज रेजिंग हैंड। अच्छा, मेरे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैसेज में मैंने रीड नहीं किए हैं, सॉरी फॉर दैट। आप लोग मुझे मैसेज में वहां पे शेयर कर दीजिए तो मैं वहां पे उनके आंसर्स कर दूंगी। हम All right. जो भी मैसेज होंगे मैं ग्रुप में दोबारा से I'll share it so that we all can ask. Shehzad, do you want to say something? Because I'm going to finish it up. We can't hear you. I think you have to unmute yourself. We can't hear you. Mr. Shehzad, are you there? Yeah, I just joined the lecture right now, so I don't know that what is the topic of the lecture. Okay, We so are closing the session now, and recording will be shared, so you can maybe rewatch it on the YouTube. Okay. Okay, thank you. Allah Hafiz. Allah Thank thank you. you.